I would like to invite Professor Anisuddin Bhatti Sahab. They fight against this deadly cancer, colorectal cancer, and I want them to share their experience regarding the colorectal cancer and as a survivor. मेरी जो सब स्पेशलिटी है ना वो पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स है, और जब ये स्पेशलिटी शुरू की तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था जिसमें पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक थी, वो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। दूसरा यूनिट हमारा था 2012, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बाद कंटिन्यूड है, मगर सेकंड यूनिट मैंने ज़ियाउद्दीन में खोला हुआ है, और हर हफ्ते तकरीबन 5-6 सर्जरीज करनी पड़ती है। तो ये हैबिट मेरी रही, और शायद इसकी वजह से भी मैं डिप्रेशन में नहीं गया। दूसरी चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मुझे हुई, बाकी बातों करने से पहले बताता हूँ, वो थी कि मैंने खुद को इंगेज रखा। आई केप्ट माई सेल्फ, यू केप्ट योर सेल्फ इंगेज, आई केप्ट engage myself in the research. I had 6 publications during this 1 year that all are international, and that is all on the pediatrics. I have left off 2 laptops full of data. अभी ये कमेंट आया था लाहौर से, I don't know how did you collected this data. Publication 2 days before was published in the University of Iowa on the Ponsity treatment, and this was the 7 countries, 17 centers and 500 cases, or I am the co-author in that. That is precise, and this all happened during this period. This 6 publication and 15 international lectures in the South Asian countries I have given on the NET 1 hour for postgraduate. My lecture are mostly to the postgraduate level. So ये सारी चीज़ें, so I kept myself engaged during this phase. I did not went in the depression. Otherwise, I have seen my other colleagues and who left the job, they went in severe depression or even the suicide. And one of my colleagues, SMCN, she was in severe depression, and Allah maghfirat farmaye, she died this 2 months back in colorectal carcinoma. And my idea is not different from you. इनमें 2-3 चीज़ें मैं आखिर में मैसेज में कहूँगा. Same story really. Your story was anemia. My story is altered bowel habit because it's to the rectum. And every time when I go to the out of Pakistan visits, and मैं डिसाइड करके आता था अब जाके गैस्ट्रो वाले को दिखाऊंगा, क्योंकि एंट्रोलॉजी पीछे नहीं लगा हुआ, पब्लिक को नहीं पता कि एंट्रोलॉजी क्या होती है. फिर यहाँ आने के बाद फिर यही हाल कि ड्यूरिंग दिस इवन आफ्टर, जैसे ही मुझे पीरियड कीमोथेरेपी के महीना गुजर में जाके सर्जरी कर लेता था जाके, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, because of the children not being operated in whole of the Sindh and Punjab and Balochistan for DDH, particularly DDH surgery and knee, reverse knee, thumb in, toe in the mouth deformities. नहीं करता कोई भी, ये मजबूरन में कर लेता था जाके. तो altered bowel habits before 1 year before diagnosis I had, and वो I took lightly because I am myself physician. And my friends are physicians. I always go to my friends, physician, even the urologist. I still remember in April when I went to the urologist, my symptom you have not shown, only 3 symptoms you have shown. Wet wind, and wet wind के साथ tenesmus and bleeding. But you must add one more symptom which has been in 2 of our surgeons. एक और सर्जन में नाम नहीं लेता, and he got his prostate operated, and I had the symptom of prostate since January 19. And I went to the urologist. I said, sir, ultrasound किया. Ultrasound report was there was a thickening of posterior bladder wall, prostate 37. उन्होंने कहा चलो शुरू कर दो ये टेम्सोलिन. मैं दरवाजे पे खड़े होकर, then I said him, you are not putting finger, you may place a foot in us. That is the belly loves wording. I said it. कहते सर भट्टी साहब कोई मसला नहीं है. मैंने कहा we physicians are surgeon not immune to another disease. अल्लाह ने हमको ऐसे नहीं पैदा किया कि हम इम्यून है बस जो कुछ करते रहो. सबसे अगर ऐसा होता तो कोविड में सबसे ज्यादा डॉक्टर न मरते. We are not immune. We are same human beings. मगर दूसरा
Then after 2 days, my prostate symptom little bit ठीक हुए. I went to the physician, gastro physician, my friend. He gave me Flagyl and Ciprofloxacin. तो दोनों हमेशा Flagyl, Ciprofloxacin देते थे because of altered bowel habit. In September, तो ये टर्की अंटालिया की विजिट पे I felt little bit harsh because of frequency of the tenesmus. मैंने कहा वही जाके दोबारा दिखाऊंगा. वापस आया, बिजी हो गया, कुछ नहीं. फिर दिखाया, Flagyl, Ciprofloxacin, बेस्ट, फर्स्ट क्लास हो गया. प्रोस्टेट वाले को अक्टूबर में फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, पोस्टीरियर ब्लेड वॉल थिकनिंग वाज देयर. फिर उसको मैंने कहा कि सर फिर ये नहीं किया आपने. अगेन आई वुड से यू विल प्लेस फुट. ये इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये मस्ट है. और तो कहते नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे. चलो आज तक वो टेंसोलिन चल रही है, प्रोस्टेट उतना ही है, सिम्टम की वजह से वो चल रहा है. देन इन दिसंबर इन यूएसए विजिट, टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहा है. आई फेल्ट लिटिल बिट स्ट्रीक ऑफ ब्लड टिश्यू पेपर. मैंने कहा चलो वापस जाके गैस्ट्रो वालों को, ना एंट्रो वालों को दिखाऊंगा. तो मैंने फ़ोन भी किया उनको, कहते बुध को देख लेंगे. फिर बिजी हो गए. जनवरी 18th in College of Physician there was a program on MCQ retreat and all the faculty, I'm faculty since 13 years in College of Physician, so dean and the secretary, तो president आपका lunch करके I direct went to Sakkar. Every 15 days I go to Sakkar. तो अभी नहीं गया हूँ डांट की वजह से. एक ये है, दूसरी मेरी बेटी हिलने नहीं देती. थैंक यू. तो वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मुझे डायरिया हुआ. आई कंटिन्यूड माई क्लिनिक एंड व्हेन आई रिटर्न बैक आई हैव सीवियर पेन एंड डायरिया पर PR एंड ब्लीडिंग. फिर मैंने कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा जख्म को, जाऊंगा एंडोस्कोपी के लिए. ये दिस वाज दिसंबर 18. फिर भूल गया. फिर वही Flagyl, वही Ciprofloxacin, वही दोस्त. उन्होंने कहा ठीक है. उसकी यूरोलॉजिस्ट ने भी कहा कि अल्ट्रासाउंड किया, कहते सेम पोस्टीरियर ब्लेड थिकनिंग. ठीक है. एंड ही हैज डन CT स्कैन, डिड नॉट गिव मी रिपोर्ट, पर यूनुस खत्री को उसने रिपोर्ट दे दी थी. कहते ठीक तो हो, यूनुस खत्री ने कहा. मैंने कहा ठीक हूँ. नहीं ना कुछ तो है. मैंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ. तो जब भी CT स्कैन रिपोर्ट लेने गया, कहते MRI करनी है. अब मुझे भी शक हुआ, तो MRI हो गई, फिर भी नहीं बताया. जख्म को फ़ोन किया, यार भट्टी साहब के साथ थोड़ा मसला है, अभी जरा इसकी वो करो सिग्माइडोस्कोपी. तो जख्म से नो 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 आई विल डू डिटेल एंड कोलोनोस. 26 जनवरी को बहरहाल कोलोनोस्कोपी हुई, बायोप्सी हुई. इट टर्न टू बी एडिनोकार्सिनोमा. बहरहाल ये एक स्टोरी इसलिए बता दो, सिम्टम वर प्रोस्टेट, अल्टर्ड प्रोस्टेटिज्म, अल्टर्ड बाउल हैबिट, सेल्फ मेडिकेशन माई सेल्फ. क्योंकि फिजिशियन मुझे Ciprofloxacin और वो दे देते थे, मैं भी वही कर लेता था अल्टर्ड बाउल हैबिट के लिए. और ये मेरी बैग में हमेशा रहती थी. जब भी मैं आउटसाइड टूर जाता था तो माशाल्लाह वहाँ लेनी ही पड़ती थी. तो अल्टर्ड बाउल हैबिट, नो सेल्फ ट्रीटमेंट, दिस इज माई मैसेज. नो सेल्फ ट्रीटमेंट और दोस्तों से इलाज न कराना. और जब मुझे ये कहा गया कि आप कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी कराएं, और मुझे मुमताज़ साहब ने कहा और भेज दिया ज़ियाउद्दीन, मैंने कहा ज़ियाउद्दीन से नहीं कराऊंगा. आई वेंट टू द आगा खान, और उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, बल्कि मेरे कार्ड पे प्रोफेसर लिखा हुआ था. मिस डायग्नोसिस इज कॉमन. अल्टर्ड बाउल हैबिट को लाइटली नहीं लेना चाहिए. जैसे अनीमिया की बात हुई, ऐसे नहीं होना चाहिए. और ये तो एक मैसेज होगा. दूसरा मैसेज फॉर पब्लिक, जो जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, मे बी पब्लिक को इतनी ज़रूरत नहीं आ रही, बहरहाल हमारे पोस्ट ग्रेजुएट है, कि दिस इज़ ए ईयर लॉन्ग ट्रीटमेंट. यस इट इज़ ईयर लॉन्ग ट्रीटमेंट. यू नीड टू बी हैव योर स्टेबल नर्व्स. आपकी तरह मैं आयरन मैन तो नहीं हूँ. बहरहाल तो बाकी सबके सामने नजर आता था, मगर जब भी भाई बहन आते तो मैं रोने से बगैर नहीं हो सकता था. और वो मुझे मिलते नहीं थी बिकॉज ऑफ कोविड. और डाइनिंग रूम में बैठे होते थे. कीमोथेरापी के साथ रेडियोथेरापी एवरी डे फॉर 15 days, 1 week gap, 3 months, horrible. I was not even able to sit down, not sleep. जो वो रेडियोथेरापी करती है ना, इट इज रियली बर्न ऑफ PR, बर्न ऑफ एवरीथिंग. यू कांट टेक. वाइफ मेरी आके सूप रखती थी, मैं यूं कहता, तो मैंने कहा नहीं खाऊंगा. बहू मेरी आके कहे, मैंने कहा नहीं खाऊंगा. तो खाओगे क्या? बहरहाल उसी में सारा वेट लाई वेंट टू 80 kg, फ्रॉम 97 to 80. अभी मेरा 7 किलोग्राम बढ़ा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस. देन आई गॉट सर्जरी. प्रोफेसर मुमताज महमूद, थैंक यू टू हिम, एंड ही चार्ज नथिंग फ्रॉम मी, alhamdulillah. And then after surgery,
Again there was a chemotherapy for I think 4 months continuous. मेरी कीमोथेरापी में उन्होंने शुरू में भी टेबलेट्स एंड इंजेक्शंस रखी थी, अभी भी टेबलेट्स और एवरी 15 डेज इंजेक्शंस थी. तो वो जिस दिन इंजेक्शन लगती थी वो स्टीरॉयड दे देते थे, मेरे डायबिटीज शूट करती थी, सब कुछ होता था मगर कंट्रोल में रहती थी. और उसके बाद ओरल, मगर ओरल जो है ना उससे ज़्यादा ख़राब है. गरल, माउथ अल्सर, ये वो बहुत कुछ जो कुछ भी है होता था. और नमनेस आज भी मेरे पास है, मेरा लैपटॉप गिर गया हाथों से पता ही नहीं चला. एंड स्टिल आई एम वॉकिंग ऑन दी सैंड और दी वेट. कभी कभी मैं हाथ लगा के देखता हूँ, पानी तो था नहीं, सुबह से मोजे पहने हुए थे, पानी कहाँ से आया, पानी होता नहीं, मगर दिस इज पैरास्थीसिया. स्टिल आई एम मे बी ऑन द डायबिटीज. And after 3 months of the 4 months of chemotherapy, 1 month gave, then I had a reversal. Before reversal, there was again an endoscopy and जो staples जो है उसके around biopsy. That done. My tumor was T2N0M0. N2 था पहले, but after radiotherapy went to N0. और इसमें शायद common है radiotherapy. Alhamdulillah, good team I got for the treatment. और अदनान जब्बार और हम दोनों एक ही पास, जब ये उठती मेरे लिए पूछती थी, मैं उससे मेरे लिए पूछता था और वो दोनों को इंकरेज करते थे. बहरहाल कोई है, इट इज़ ए हार्ड टाइम टू हैव एन कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरापी, बट इट इज़ ओनली 9 months पीरियड एंड देन रिकवरी. अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दिस इज़ ए क्यूरेबल टाइप ऑफ ट्यूमर और क्यूरेबल विथ ट्रीटमेंट इफ दे स्टार्ट अर्ली. अब लेट RDL I have medical college के assistant professor. She had a metastasis. She died 3 months back or 2 months back because of multiple chemotherapy. She could not survive. And alhamdulillah हम दोनों को level 1 कहे, T1 कहे, तो हम survive भी कर गए और अभी माशाल्लाह हटे कटे भी है. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा मुझे यूनुस खत्री, हालांकि मैं बैठ के सर्जरी करता था, खड़े होकर मुझे चक्कर आ जाते थे, तो कहते थे ये इसकी दुआ तेरे को लगेगी कि तुम इस हालात में आके इसकी ऑपरेशन कर रहे हो जो ये रुल रहे हैं. आई हैड 45 DDH केसेस ड्यूरिंग दिस 3-4 months पेंडिंग. तो वो आई कंप्लीटेड ऑल एंड इवन न्यू प्रोसीजर्स आई इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस. माय वन पब्लिकेशन केम ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसका मटेरियल मेरे पास बहुत था और एक डिसर्टेशन भी लिखी हुई थी जिसको कहते हैं भट्टी फंक्शनल स्कोरिंग फॉर हिप असेसमेंट, और वो इंटरनेशनली पब्लिश हुआ. अब तो पता नहीं, सब लिख रहे हैं कि हमारे पास भी पेपर भेजो. इज़ अमेजिंग. सिंपल भट्टी स्कोरिंग है कि हम उसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर वक्त खाना और डेली हैबिट्स के लिए नीचे बैठते हैं और नमाज पढ़ते हैं. आज तक किसी ने ये स्कोरिंग सिस्टम नहीं किया. तो मरीज़ हमारे आता है, कहता है ये पलथी नहीं मार सकती, ये स्क्वाट नहीं कर पाती, नमाज नहीं पढ़ सकता. ये 3 चीज़ों पे किसी ने स्कोरिंग सिस्टम नहीं बनाया था आज तक. जितने भी स्कोरिंग से लेटा हो, देखा दर्द है या नहीं है, इस तरह से सारे को फिर कंपेयर किया, वो एक पब्लिकेशन आया. तो भट्टी स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह एक पब्लिकेशन और भी, ये भी सब इसी दौरान लिखा. तो ये मतलब है आप खुद को इंगेज रखें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है डिजीज़ अगर आपने अर्ली स्टेज. तो मैसेज ये है कि यू डोंट निगलेक्ट, यू डोंट शुड बी योर फिजिशियन, डोंट गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स. एक चीज मुझे समझ में नहीं है, जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था लिखा हुआ था प्रिवेंट योर कोलोरेक्टल कैंसर कार्सिनोमा. ये कैसे? उस थ्रू कोलोनोस्कोपी, ठीक है ना, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी, मगर इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं. मैंने इस पर काफी डिस्कस भी किया और ये जो कुश्ते देते हैं उनसे भी बात की मैंने. कुछ कुश्ते मेरे पास भी भेजे थे. एक मौलवी साहब हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा कि ये जब ये डिजीज तुम्हारी खत्म हो जाए तो फिर खाना इसकी प्रिवेंशन के लिए. और यहाँ पे एक आलिम और भी हैं इस हॉस्पिटल में, उन्होंने भी कुछ मुझे भेजे कि ये खाओ तो ये सिम्टम भी खत्म हो जाएंगे, ये कैंसर भी खत्म हो जाएगा. वो उसी तरह पड़ी हुई है मेरे पास, दुआएं इनकी शामिल है. तो ये जो हिकमत की मेडिसिन है इसमें ज़्यादातर कुछ में तो स्टीरॉयड होता है, कुछ चीज़ों में जो सेक्स के लिए देते हैं उसमें आर्सेनिक होता है. नंबर 1. नंबर 2, हम कोई भी सही चीज़ नहीं खा रहे. आप मुर्गी की अभी देखी होगी, काट के आपको मैसेजेस किए कि उसमें आर्सेनिक है, पता नहीं क्या है. अब 6 हफ्ते में इतनी चीज़ इतनी बन जाती है, तो कैसे बनती है? और सबसे ज़्यादा चीज़ हम वही खाते हैं. तो देसी मुर्गी की तलाश करें, इसको छोड़ दें. तीसरा, आप फूड कौन सा खाते हैं? गटर बागीचे का फूड तो मशहूर था, जो गार्डन के एरिया में मिलता था. गटर बागीचा, आजकल बागीचा है, वहाँ सब्जी नहीं खाते, मगर मलीर की सब्जी आज भी हम खाते हैं. ये भी एक काज हो सकता है. हम अब दूध जो ले रहे हैं डब्बे वाला, कल जनरल सेक्रेटरी साहब थे टीवी पे कि डब्बे का दूध इस्तेमाल करो.
تو میں نے کہا بھائی فریش کیوں نہیں استعمال کرو, ان کا ریزن علیحدہ تھے. بہرحال اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی پرزرویٹو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ مہینہ پرزرویٹو کے بغیر. تو پھر آج کل پھر آرگینک ملک یہاں آیا ہوا, جو نان آرگینک ہے یا جو بھی پرزرویٹو ڈالتے, کبھی اس پہ کسی نے ریسرچ کی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی ریسرچ ہوئی. دنیا نے بند کر دیا ہے, دنیا بتاتی ہے کہ یہ آرگینک ہے, وہ یہ فورٹیفائڈ ہے, یہ ٹنڈ ہے, آپ جو لینا آپ کی مرضی ہے, پہلے اس پہ لکھا ہوا ہے. مگر ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ ہم کو دیے, مگر ہم لوگوں نے اپنی ہوا بھی ٹھیک نہیں رکھی. ہماری گاڑیاں جو چلتی ہیں اس میں 99% گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں ہیں جس میں ڈیزل نکلتا ہے, چاہے گا تو آپ کے کپڑے, آپ سب جو اسکوٹر پہ چلتے ہیں ایکسٹرا پہنتے ہو. کیوں پہنتے ہو؟ کیونکہ آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پوری پالیوشن جو ہے, نہ ہم کھانا صحیح کھاتے ہیں, نہ پیتے صحیح ہے, پانی بھی جو پیتے ہیں ماشاءاللہ, اور نہ ہوا ہمارے پاس صحیح ہے. تو یہ میں بھی along with, ابھی ایک دوست کینیڈا سے واپس آیا اینڈ ہی واز ہیئر, اینڈ مجھے سن کے کہتے ہیں تم دونوں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کنسیکیوٹو, دونوں کو کیوں ہوا؟ تو کہتا ہے میں ایک چیز بتاتا ہوں صرف, دیٹ از اسٹریس. تو یہ میسج یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن, دوستوں سے میڈیکیشن, پراسٹیٹزم کا سمٹم اس کو ڈال دیں, اور باقی جو ہے آپ کی لائف اسٹائل بہتر رکھیں تو آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور ریگولر کولونوسکوپی 55 کے اوپر ویسٹ میں اور امریکہ میں کافی ریکمینڈ کرتے ہیں. ہمارے دوست یہاں سے بھی گئے 55, اس کو دونوں اوپر سے بھی کر دی, نیچے سے بھی کرتا ہے. یہ کون سا ظلم ہے؟ میں گیسٹرو کرانے گیا, نیچے سے پائپ ڈال دیا. میں نے کہا بیٹا اچھا کیا تیرے ساتھ, تو آئندہ جانا بھی نہیں, وہاں سے بچوں کو بھی یہاں بلا لو, یہاں آ کے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں ریگولرٹی ہے, وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ جو ریٹ ہے نا سروائیول کا امپروو ہوا ہے, اور ڈائگنوسس زیادہ بڑھی ہیں وہاں پہ. ہمارے پاس یہ کوسٹ سسٹم نہیں. کوئی بھی فزیشین نے مجھے اس وقت یا آج تک یہ نہیں کہا کہ جا کے انڈوسکوپی کرا لو, کسی نے نہیں بولا. حالانکہ بار بار جاتا رہا, یہ نہیں کہ میں نے سیلف میڈیکیشن لی. سیلف میڈیکیشن اس حد تک لے لیتا تھا کہ کیونکہ اس نے دی تھی تو آج بھی لے لیتا ہوں. تو آئی ٹک پریونشن, پر جتنا کر سکتا ہوں. الحمدللہ وی بوتھ آر دی الحمدللہ گڈ سروائیور. ابھی پوسٹ کیمو اسٹاپ کے بعد 4 مہینے ہم کو ہو چکے ہیں دونوں کو. یہ چیزیں ہیں کہ تھوڑی اس دوران تکلیف بہت ہے, مگر آپ ٹیومر فری ہو جائیں تو ایک نئی زندگی ہے آپ کے لیے. اور تیسری بہت امپارٹنٹ چیز دی تھی, آئی واز irregular in the prayers. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم بہت خطرناک آدمی ہو, ٹھیک ہے دوائیں تو بہت لگی ہوئی ہیں, کچھ اپنے لیے بھی کچھ کیا کرو. تو وہ ایک یادگیرہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو اور اس دوران اب ریگولرٹی سے 5 وقت, پہلے irregular تھا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے کہ جب آپ نکل جاتے ہیں تھوڑی سی, تو اچھے بندوں کو وہ کہتا ہے کہ دیکھ واپس آ جا لمٹس میں. ادھر یہ تو نہیں پوچھے گا ہاں بھائی پروفیسر صاحب تو پروفیسر تھا تو اچھی لسٹ میں کھڑا ہو جا, وہاں یہ نہیں ہے. وہاں پوچھے گا نماز پڑھی تھی, اور حقوق العباد سب سے بڑی چیز جو ہے حقوق العباد, نماز اپنے لیے, زکوٰۃ اپنے لیے, حج اپنے لیے, باقی حقوق العباد کا تو پوچھا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ اس دوران جو ہے نا وہ واپس کہتا ہے ٹریک پہ آ جا تھوڑا سا. تو اللہ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے, اور اسی کی سب کچھ بلیسنگس ہیں کہ آج ہم نئی زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں, ٹیومر فری کے ساتھ جی رہے ہیں الحمدللہ. اینڈ بیسٹ وی آر ڈوئنگ. اچھا وزن بھی کم ہو گیا, واپس ٹریک پہ بھی ہے. اور میسیج ہمارا وہی سمپل ہے کہ ڈونٹ say yourself کہ I am physician, or no doctor is immune to any disease. Thank you very much.